सभासदों, माननीय सभापति जी। Namaskar ji. Namaskar ji. Now, papers to be laid on the table. Papers to be laid on the table. Sri Birendra Singh. Sri Birendra Sir, I Singh. rise to lay on the table of No, the Deputy House the Speaker, sit papers down. listed against my name at serial number Not 1 of going on today's record, Rajya sit down. Sabha list of business. Sri Rao Indrajit Singh. With your permission, sir, I beg to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2 of today's There is revised no list of Deputy business. Speaker here. Sit down. Sri Bandaru Dattatreya. Sir, I beg to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 3, today's list of business. Sri Prakash Javadekar. With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Sri Piyush Goyal. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Sri Sanvarlal Jatt. महोदय, मैं आज के कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 6 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागज सभा पटल पर रखता हूं। आप बैठिए। Sri Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, on behalf of my colleague Shri P. Radhakrishnan, I rise to lay on the table of the House the paper listed against his name at serial number 7 in today's revised list of the business. Sri Sudarshan Bhagat. महोदय, मैं आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Message from the Lok Sabha Secretary General. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 11th of March 2016 passed the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Bill 2016. The Speaker has certified that this bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the bill on the table. The report of the Debate-related Parliamentary Standing Committee on Energy. Dr. K.P. Ramalingam. Sir, Deputy Chairman, sir, thank you, sir. Sir, I beg to lay the report on the table, a copy in English and Hindi of the 13th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy 2015-16 on the subject development of status and small hydro sectors relating to the Ministry of New and Renewable Energy, sir. Now, honorable members, I have to inform that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 11th of March 2016 allotted time for government, legislative and other business as indicated below. Business, consideration and passing of the Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Bill 2012, time allotted 2.5 hours. Consideration and passing of the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016 as passed by Lok Sabha to replace an ordinance, 2 hours. Consideration and return of the Aadhaar Target Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Bill 2016 as passed by Lok Sabha, 3 hours. Motion for modification of notification number 46/2015, Central Excise dated the 16th December 2015, seeking to further amend the Constitution, amend the notification number 12/2012, Central Excise dated the 17th March 2012, for increasing the basic excise duty on unbranded petrol, branded petrol, unbranded diesel and branded diesel, and laid on the table of the Rajya Sabha on 16th of December 2015, admitted in the name of Sri K. N. Rajagopal, half an hour. Now a statement by ministers. Sri Birendra Singh. I rise to make the statement as indicated against my name at serial number 1 in today's business list of Rajya Sabha. The statement has been laid on the table of the House and may be considered as read to save the valuable time of the House. Thank you. Rao Indrajit Singh. Sir, I am making this statement on the status of the implementation of recommendations contained in the 20th report of the Standing Committee on Finance of the 16th Lok Sabha, in pursuance of the directions of the Honorable Chairman Rajya Sabha, issued White Bulletin Part 2, dated 28 September 2004. The present status of implementation of the various recommendations
made by the committee as indicated in the annexure to my statement is laid on the table of the House. Okay. I would not like to take the valuable time No, of it's the all right. House. Thank you. The rest of it may kindly be. Sri Bandaru Dattatreya. Sir, I make today statement on the status of the implementation of the recommendations of contained in the first report of the Parliamentary Standing Committee on Labour on the Now- demands for grants of 2014-15 Ministry of Labour and Employment. No, no. See, 267. No, Naresh Agarwal ji. 267 not yes. Yes, 267 notice, of course, was given by Sri Naresh Agarwal, but chairman has not admitted it. It has not been admitted. Now, also from Pramod Tiwari also there is a 267. Both have not been admitted. Admitted. Not admitted. Chairman has not admitted. Yes, chairman has not admitted. आरएसएस की नागौर की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आरएसएस ने प्रस्ताव पास किया कि क्रीमी लेयर वाले आरक्षण छोड़ दे। ये एक सिस्टमेटिक तरीका चल रहा है। बिहार के चुनाव में भी सरसंघ के संचालक ने ये बात कही थी कि that is a private organization. Why are you worried about that? आरएसएस का पार्ट है, ये आरएसएस का पार्ट है। ये सरकार तो आरएसएस That is a private organization. आरक्षण समाप्त करने। Why are you worried about that? कोई फर्क नहीं आरएसएस और गवर्नमेंट में। Eh? आरएसएस और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं, जो आरएसएस कहती है। No, that is your view only. इसलिए हम कहते हैं कि ये साजिश है आरक्षण को समाप्त करने की। That is your view only. ये साजिश एक गंभीर साजिश। माननीय सभापति जी, आरक्षण के बारे में समय समय पर जब से सेंट्रल में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो बीजेपी और आरएसएस तो रिजर्वेशन को लेकर किस्म किस्म की बयानबाजी कर रही है। In any case, खास तौर से जो कल जो राजस्थान में in any case, no. Let me listen to the minister first. You want to say something about it? Yes. Minister is okay. No, minister is reacting. No, minister is reacting. हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि आरक्षण रहना चाहिए। कुमारी मायावती जी, प्लीज लिसन टू द मिनिस्टर। संघ ने बात करी है, अग्रवाल प्लीज लिसन टू करने के लिए नहीं करी है। सर, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, कल टेलीविजन चैनल्स पे और समाचार पत्रों में ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक बयान आता है। उस बयान में उन्होंने आरएसएस की तुलना आईएसआईएस के साथ ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला कि आतंकवादियों को let us listen to the minister. I would request the shouting members. Please go back. पहले सुनिए। इसलिए माननीय कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरएसएस को आईएसएस जैसे आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ा है। No, in any case, see, matter is raised here. Let me listen to the minister. What he has to say. After that, you can react. Minister. ना, उसके बारे में। सर, क्या बोलो? आरक्षण के बारे में हमारी पार्टी, हमारी सरकार बार-बार स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण को हटाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो दलित हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वो थी और रहेगी। जहां तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस ने भी आरक्षण को मजबूत करने की बात की है, आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की है। अगर आपको समझ में नहीं आया उनके बयान को, हमें लगता है उसमें हम कुछ नहीं क्यों समझ में नहीं आया? दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ बैठे हुए हैं। कल उनका एक बयान आता है जो टेलीविजन मैंने बता दिया खत्म। कल बयान आता है एक सुनिए जिसमें कहा गया है कि आरएसएस और आईएसएस एक है, और ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला कि आतंकवादियों को फूलों का गमला
और राष्ट्रवादियों पर हमला, ये जो ग्रैंड होल्ड पार्टी का एक ब्रांड न्यू सेकुलर फार्मूला है। इसलिए हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे देश में बेचैनी है, देश में आक्रोश है और देश में गुस्सा है। You want to say? You want to say something? Yes. Yeah, इसका. No, LOP. Let me. After LOP, I will call you. I will allow you. I will allow you. Let me listen to. No. Minister has, Nareshi, Minister has mentioned the name of LOP and raised an allegation. So naturally, LOP has to reply. Let me listen to that. उसके बाद आपको मिलेगा. All of you are talking together. एक बोली. One of you speak. आरक्षण के रिजर्वेशन के बारे में he has given assurance. No, रिजर्वेशन के बारे में सुनिए रिजर्वेशन के बारे में he has given an assurance to the house that it will not be reconsidered. What else you want? That is okay. Now after first you allow, please allow LOP after that. Ram Gopal ji, I will call you after LOP. Kumari Mayawati, I will call you after LOP. Both of you. दोनों को बुलाएगा. LOP. Yes. I said I will call Ram Gopal ji. Sit down. Yes. After LOP. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब. No, please. आप लोग बैठिए, सुनिए. आप लोग बैठिए. आप बैठिए. आप सुनिए. आपने मुद्दा उठाया, आप सुन लीजिए ना. What he is going to say? Let us listen. आपने बैठिए. या तो मुद्दा उठाइए नहीं. या तो मुद्दा उठाइए नहीं तो या सुनिए. बैठिए. सुनिए. माननीय नकवी साहब ने यहाँ मुद्दा उठाया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं. और सबसे ज्यादा शायद सुनने के लिए मेरे दोस्त रवि प्रसाद जी बहुत बेकरार हैं, क्योंकि आपने क्या कह दिया? आपने मेरा बात कहा क्या? सुना करिए. आपने उसकी तुलना की आईसीस से. Okay. Now listen to him. Listen to him. गुलाम नबी आजाद. सुनिए. आपने आईसीस रविशंकर प्रसाद जी. कर दिया. Please listen to the minister. पढ़े लिखे आदमी की तरह पढ़े लिखे आदमी Please listen to the LOP, please. पढ़े लिखे आदमी की Floor is given to LOP. आप लोग बैठिए. पढ़े लिखे आदमी ट्रेशरी बेंचेस बैठिए. आप लोग भी ऑपोजिशन बेंचेस भी बैठिए. आप लोग बैठिए. सुनिए. अगर निंदा करने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए. सुनिए. ये इंटॉलरेंस जो आप बाहर करते हैं वही इंटॉलरेंस आपको सदन के अंदर भी. ये उस इंटॉलरेंस जो 24 घंटे आप बाहर करते हैं, ये उस इंटॉलरेंस का यहाँ भी आप दृश्य दिखा रहे हैं. विप्लव, व्हाट इज दिस? विप्लव, सिट डाउन. Now, order, please. Now the House, it is our practice in the House that we will listen to Honorable LOP always. Please sit down. That high. Yeah, please. No, not now. Sit down. Not now. KC Tyagi, sit down. I am not allowing you. No. You sit down, KC Tyagi. Please. KC Tyagi, sit down. Not going on record. Tyagi ji, बैठिए. Now the floor is given to Honorable LOP. बीजेपी के लिए सबको आतंकवादी है इनको छोड़कर. ये बैठिए. No. जो बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, वो सब आतंकवादी है. बैठिए. ओके. माननीय प्लीज डिप्टी चेयरमैन साहब,
ये मेरी स्पीच की सीडी है। प्लीज। और मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से गुजारिश करूंगा कि ये सीडी मैं उनको दूंगा, टेबल तो मैं रखूंगा और उनको अलग से दूंगा इसी की, या टेबल से ही ले लें। ये अपने कमरे में जाकर हमारे बीजेपी के सदस्यों और मंत्री समेत रवि प्रसाद जी समेत उनको सुना दें, रविशंकर प्रसाद जी को प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी ना प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी को ये सुनाएं। अरे बस प्लीज ये सुनाएं। और अगर इस सीडी में और जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें कोई अगर गलत लिखा हो तो रवि प्रसाद जी कल हमारे खिलाफ, अरे प्लीज ये आप हमारे खिलाफ प्रिविलेज कल लाइए। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो इससे है वो मैं पढ़ रहा हूं। मैं पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ 2 पेज की, क्योंकि अगला पेज और पिछला पेज नहीं पढ़े तो फिर वही टीवी चैनल वो एक लाइन पकड़ के पूरे देश में वबाल खड़ा करता है। इसलिए उससे एक पेज पहले और एक पेज बाद में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पूरी पढ़ने के लिए 1 घंटे की स्पीच 25 मिनट की आपको दे रहा हूं। सर, जहां से ये जो भाइयों, आज जैसा मैंने शुरू में कहा, इसमें का की आप जब बोलते हैं तो थोड़ा गलत होता है, वो का कहीं की लगता है, और मैंने इसको वर्बेटम जैसे मैंने वहां कहा है वैसे ही कोशिश की है लिखने की। आज जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, और आज की इस जमीयतुल उलमा हिंद की तारीखी कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों को जो चाहे जज हों या रिटायर्ड जज हों, चाहे वो पत्रकार हों, लिखने वाले हिंदी अंग्रेजी या उर्दू के हों, चाहे वो कुछ चंद टेलीविजन, फिर मैं दोहराता हूं, मैं चंद लफ्ज लगा रहा हूं, चंद टेलीविजन के एडिटर्स हों जिनको निकाला जाता है सरकार की तरफ से एक चैनल से दूसरे चैनल से, क्योंकि वो सेकुलर और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उन एंकर्स को बधाई देता हूं जो इस सरकार के होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं और नौकरी से बर्खास्त होना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं इखलाक के बाद जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए, चाहे जाती तौर पर आपको और हमें उनसे बात करने का मौका न मिला हो, लेकिन इस स्टेज से, कौमी यकजहती के इस स्टेज से शायद और कोई ऐसा मंच नहीं हो सकता कि उनके इस काम के लिए जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसकी हम सराहना न करें तो शायद हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं। वो भी एक तरह की कुर्बानी देते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई आज हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं है। मैं रिपीट करता हूं मेरे भाइयों, लड़ाई आज हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं है। कौन कहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई? मौलाना मीन्स मौलाना अरशद मदनी जो चेयरमैन है, तो मैं उनकी तरफ इशारा करते हूं। मौलाना हमेशा कहते हैं कि ये नजरिए की लड़ाई है। नजरिया मीन्स आइडियोलॉजी, नजरियात की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है। हम उस बोसीदा, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, हम उस बोसीदा सोच के खिलाफ हैं। वो हिंदू की बोसीदा सोच हो, वो सिख की बोसीदा सोच हो, वो मुसलमान की ही बोसीदा सोच क्यों न हो। हम देखते हैं मुसलमानों में भी, जो आज दुनिया में मुसलमान मुल्कों की तबाही और बर्बादी के बाइस बने हैं, अगरचे उसके पीछे कुछ ताकतवर ममालिक हैं, लेकिन मुसलमान इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं?
मुसलमान क्यों? मैंने आरएसएस का नहीं बताया उसमें क्यों शामिल है, मैं मुसलमान बता रहा हूं मुसलमान उसमें क्यों शामिल होंगे हैं, वो इस साल में क्यों आ रहा है। अब आपका जो बीच में से उठा के किसी ने उसको तोड़ के पेश किया, कोट अनकोट, हम ऐसी ISIS वाली जैसी संगठन है, कोट ये है, आप 10 दफा इसको सुनिए और फिर कमेंट पास कीजिए मंत्री जी। तो ऐसी ISIS वाली जैसी संगठन है, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना आरएसएस का करते हैं। What is the comparison? I have not said or no. This is आप प्रिविलेज करिए, कल प्रिविलेज ये करिए हमको पार्लियामेंट से निकालने का, कि अगर मैंने ये बताया कि आरएसएस और IS एक हैं, दैट इज कंपैरिजन। आई विल रिपीट अगेन फॉर द एंटायर नेशन, हम ऐसी ISIS वाली जैसी संगठनें हैं, हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जैसा आरएसएस का करते हैं। लिहाजा ये मजहब ना, इट्स नॉट दैट चालाकी का। अरे ये सीडी में है, मैं चालाकी, मैं तो आपको बताऊं, सीडी दीजिए, ये कम्युनिकेशन मंत्री हैं। मैंने क्यों बताया? मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कम्युनिकेशन मंत्री हैं, अच्छी तरह से आपके लिए डॉकेट बना सकते हैं। लिहाजा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच भी इस्लाम में, सुनिए, हमारे बीच भी इस्लाम में, दुनिया में कोई गलत काम करता है वो आरएसएस से कम नहीं है। आई एम टॉकिंग ना, अगर इस्लाम में भी, अब इस्लाम पर भी आपको, इस्लाम में भी आपको तकलीफ होगी, इस्लाम में भी तकलीफ होगी, इस्लाम में भी आपको तकलीफ है कि आपको इस्लाम से कंपेयर करने में भी, अगर इस्लाम में कोई गलत काम करता है उसको आरएसएस से कर दिया। भाई इतना तो नहीं रवि जी, आप ऊपर हवा खाइए। इसलिए वो हिंदू फिरका परस्त हों, वो मुस्लिम फिरका परस्त हों, या फंडामेंटलिस्ट हों, या सिख फिरका परस्त हों, हमें सब फिरका परस्तों का मुकाबला करना है, क्योंकि वो दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए कैंसर का काम करते हैं। जो इंसान को इंसान से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो नफरत की कोशिश करते हैं, वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का हो, उसका हमने एकजुट होकर मुकाबला करना है। इसलिए इस नजरिए को खत्म करने के लिए आज जरूरत है वो तमाम सेकुलर ताकतें जो जद्दोजहद कर रही हैं, चाहे अखबारात के जरिए, टेलीविजन के जरिए, और जहां भी वो हैं, वो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई सब एक हो जाएं। आज लड़ाई है फिरका परस्ती और सेकुलरिज्म के बीच में। हम देखना है कि जीत सेकुलरिज्म की होती है या फिरका परस्ती की जीत होती है। इस सेकुलरिज्म की लड़ाई में आप देखेंगे कि इस सेकुलरिज्म की लड़ाई में आप देखेंगे कि आपको हर मजहब के लोग मिलेंगे, लेकिन फिरका परस्ती की लड़ाई में आपको सब मजहब के लोग नहीं मिलेंगे। और हिंदुस्तान सभी मजहबों का है, जिसका मतलब है कि अक्सरियत हमारे साथ है। जिस नजरिए के साथ सब मजहब के लोग हैं, वही मेजॉरिटी है, उसी की जीत है। अब मुझे बताइए, यहां का बताइए कार्य। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं जाति तौर पे नेता प्रतिपक्ष आजाद साहब की हमेशा इज्जत करता रहा हूं। जब वो सदन में बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, तो एक तहजीब जिसकी अपेक्षा होती है उनसे हमेशा मिलती है। मुझे लगता है कि उनको एक बार सोचना चाहिए कि जाने अनजाने में इस बार वो कुछ फिसले हैं। ISIS क्या है
इसकी स्पष्ट कल्पना सबको है। आज पूरी दुनिया में विश्व शांति में सबसे बड़ा खतरा कोई संगठन बना है जो दुनिया में अराजकता फैला रहा है, वो आईएसआई है। एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, टैंक्स, जिनके दस्तावेज छपते हैं कि दूसरे मजहब में विश्वास करने वालों के साथ क्या इलाज होना चाहिए, उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं। और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में आईएसआईएस को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था। ये आप लोगों ने इलेक्शन के लिए बीजेपी का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि कुछ उसका सफाई देने की जरूरत नहीं, आने जाने अनजाने में अगर फिसल गई तो माफी मांग ले, इशू क्लोज हो जाता है। ये नरेश अग्रवाल जी ने 267 के अंतर्गत एक नोटिस दिया कि आरएसएस की तरफ से कल आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक सुझाव दिया गया। उसका रिप्लाई मिनिस्टर ने बोला है। ये इस आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है, इसकी प्रक्रिया ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है बोला है। ये कहें, हाँ, ये नेता सदन कह दे, हम बैठ जाएं। रामगोपाल जी, नेता सदन इसकी आप चिंता मत कीजिए। जहां तक सरकार की स्पष्ट नीति है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, हर हालत में बनी रहेगी, और जिस प्रस्ताव की आप जिक्र कर रहे हैं उस प्रस्ताव ने भी वो नहीं कहा जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोगों से कहिए कि ये बयानबाजी न करें। ओके, इट इज कुमारी, इट इज क्लियर। एक माननीय उपसभापति जी, मंत्री ने आश्वासन दिया है। ओके, माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय नेता सदन को ये याद दिलाना चाहती हूँ, आपको भारतीय संविधान के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। भारतीय संविधान में ये स्पष्ट है कि इस देश में जो एससी, एसटी या ओबीसी के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको जो आरक्षण की सुविधा मिलेगी, उसके 3 क्राइटेरियाज भारतीय संविधान में हैं। जो शैक्षणिक रूप में पिछड़े हों, सामाजिक रूप में पिछड़े हों और आर्थिक रूप में पिछड़े हों। तो 3 क्राइटेरियाज रखे हैं जिसके आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन दुख की बात ये है कि आए दिन तो आरएसएस के लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं कि इसका आधार आर्थिक होना चाहिए, सामाजिक नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, खैर अच्छी बात ऐसा नहीं कहा किसी ने। सदन ने स्पष्ट किया है कि जो आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन मेरा नेता सदन से ये भी कहना है कि आरएसएस जो इनके सहयोगी संगठन है, आए दिन इस किस्म की जो बयानबाजी करते रहते हैं कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है, सरकार गवर्नमेंट हैज मेड द पॉलिसी वेरी क्लियर ना होकर आर्थिक होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सरकार को आरएसएस नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, पॉलिसी इज वेरी क्लियर। उनको भारतीय संविधान Now I'll go to now 0 hour में बताना, 0 hour श्री कुमारी सलजा, उनको बता देते हैं कुमारी जलजा 0 hour, इस किस्म का बयानबाजी वो देना बंद, कुमारी जलजा बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया। कुमारी जलजा प्लीज 0 hour, 0 hour कुमारी जलजा, nothing else will go on record। सर हरियाणा में, हरियाणा में पिंजौर में, I told you your 267 notice is not accepted by the honorable chairman, so sit down। My point of order, no, कुमारी सलजा, not allowed। मुझे Why are you disturbing your own member, Tiwari ji? मेरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर।
I told Tiwari ji, I told you, Punia, you are not controlling the chair. I have to sit down, Punia. Mr. Punia, do you want to come here and control? Then do come here. Sit down there. Sit down there. No, Mr. Tiwari, no, Mr. Tiwari, I have already told you, Honorable Chairman has not admitted your 267 notice. Therefore, you are not permitted. Sit down. Saljaji, please. I am not allowing. Saljaji, only what Shelja says will go on record. हरियाणा में के 2 यूनिट I have given the time to floor to Shelja. That will only go on record. माननीय लीडर ऑफ द हाउस जो कि वित्त मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सरकार का ध्यान और First of all, you obey the chair first. Sit down, all of you. Now I have called Shelja. Let her say. After that, if need be, I will call you. Shelja, please. सर, हरियाणा में HMT के 2 यूनिट हैं। सर, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, यूपीए सरकार में HMT यूनिट्स के लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज दिया गया था उसके रिवाइवल के लिए। लेकिन सर, बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के हज़ारों एम्प्लॉइज़ को 19 महीने से और 11 महीने से एक भी पैसा वेतन का नहीं मिला है। सर, ये इतने अफसोस की बात है। वो लोग बेचारे कहाँ जाएं? उनके बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, सामाजिक कार्यों के पैसे नहीं है, राशन तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। सर, ये हज़ारों एम्प्लॉइज़ बेचारे कहाँ जाएं? अब इनका अगर आप पैकेज सोच रहे हैं तो सर, आपने VRS की स्कीम बनाई है। VRS में आपने बाकी सारे HMT यूनिट्स को लिया है, लेकिन पिंजौर के जो 2 HMT की यूनिट हैं उनको इस VRS स्कीम से आपने बाहर रखा है। सर, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यहाँ पर सर, ये इतने अच्छे यहाँ पर मशीनरी है। उन्होंने पहले भी डिफेंस के लिए भी काम किया है, रेलवे के लिए भी काम किया है। सर, क्यों नहीं? सर, मंत्री जी भी यहाँ पर, गीते जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्यों नहीं जॉइंट वेंचर कुछ करते हैं रेलवे के साथ या डिफेंस के साथ, और उम्दा मशीनरी यहाँ पर तैयार करने की हमारे वहाँ पर लोग बड़े टैलेंटेड हैं, वो लगे हुए हैं इतने साल से। क्यों नहीं सरकार मेक इन इंडिया की मिसाल वहाँ पर पेश करती है? एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और दूसरी ओर हमारे बने बनाए यूनिट्स जिनको दशक लग गए हैं इतना तैयार होने में, इतना उनका योगदान रहा है देश की इंडस्ट्री में, और उनको क्यों ये बंद करने पे तुले हुए हैं? सर, बेचारे वहाँ के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। सर, वहाँ पर सैकड़ों एकड़ वैल्यूएबल ज़मीन है। सर, हमको शक है कि कहीं ये वो ज़मीन रियल एस्टेट वालों को ना बेचने हो, वो वैल्यूएबल ज़मीन है। सर, वो इतना वेल कनेक्टेड एरिया है, रेलवे से भी, एयरपोर्ट से भी, रोड से भी। सर, इतना बढ़िया एरिया है। आप पास में इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी का, हिमाचल का, हमारे यहाँ का एक मेजर हब हो सकता है सर, लेकिन उसको ये खत्म करना चाहते हैं। मेक इन इंडिया का नारा खोखला है। हमारे हजारों एम्प्लॉयज बेचारे आज भूख की कागार पर हैं, उनके बच्चे भूख की कागार पर हैं, इनको उनकी कोई चिंता नहीं है। सर, उन बेचारे एम्प्लॉयज का क्या होगा? मैं जवाब चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से। मैंने खुद चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आया है, लेकिन वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। सर, ये इस सरकार की क्या जवाबदेही नहीं बनती है हमारे लोगों के प्रति? थैंक यू सर। ओके, okay. All right. So you associate, okay, all right. Now, Tiwari, under what rule is your point of order? Tell me. Okay, it's on record. Under what rule is your point of order?
Under what rule your point of order? Sir, Deputy Chairman, sir, Under what rule is your point of order? let me address you at least. Eh? Let me address you at Yeah, least. yeah. You want to respond to that? 1 second. You want to respond? Yeah. Okay, okay, do that. उपसभापति जी, सदन की सदस्य शैला जी ने जो यहाँ पर HMT पिंजौर के यूनिट को लेकर यहाँ पर जो प्रश्न उपस्थित किया है, मैं उनकी चिंता से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी के फेवर के लिए या किसी को लैंड बेचने के लिए ये कोई षड्यंत्र नहीं है। कोई षड्यंत्र नहीं है, किसी को बेचने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हमने इसके पहले HMT के 3 यूनिट्स बंद करने का निर्णय किया। अब HMT पिंजौर भी संकट में है। लगभग 1.5 साल से अधिक समय से हम उनका वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, घाटे में पूरा है। इसलिए ये निर्णय हमने किया है, जैसे HMT के 3 यूनिट को हमने अच्छा VRS पैकेज दिया, उसी प्रकार से हम HMT पिंजौर को भी VRS का पैकेज देने जा रहे हैं और कर्मचारी संतुष्ट है, उनसे मेरी चर्चा हो चुकी है। Okay. Now Sri Tiwari. Now, okay, you made it. Clarity of Telangana HMT. No, that is different. You give, for that you give another notice. No, for that you give another notice. Then you can give another notice. Now, Kishore, Tiwari, under what rule is your point of order? Under what rule? Sir, Deputy Chairman, sir, the House is run by rules. The House is run by Constitution. You are encroaching on the time of members who are given 0 hour notice. So tell me quickly. Sir, if you will not permit me. I have permitted you. Under what rule? Tell me rule. Sir, let me say something. I have to get. House is run by. No, the general statement. You give the say the rule number. House is. Read 267 again. Read 267 again. 3267. विजय माल्या इस देश का 267 वही आसपास 267 ओके सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ विजय माल्या 10,000 करोड़ लेकर जब चला गया तो इन्होंने एक लुकआउट नोटिस जारी की कि उसे जहां भी इमिग्रेशन में मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन चूंकि इन्हीं के टिकट पर इन्हीं के समर्थन से वो जीत कर आया था तो इन्होंने अपनी लुकआउट नोटिस को कैंसिल किया और ये कहा सिर्फ सूचना कर दिया जाए जिसका फायदा उठाकर विजय माल्या आरोपी देश छोड़कर भाग गया और मैं सीधे एक बात तिवारी जी this issue was raised here, discussed here. I myself got given ruling that it should be referred to the ethics committee and so nothing more. Sit down. Now Sri Ali Anwar Ansari. This was already raised here, discussed here. I got given ruling that it should be referred to ethics committee. That is the final matter. Sit down. Yes. For the rest, law will take its own course. Yes. Ansari ji. उच्च शिक्षा में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। Nothing else will go on record. लेकिन महोदय तमाम only what Ali Anwar says will go on record. Nothing else will go on record. अधिकतर विश्वविद्यालय ओबीसी रिजर्वेशन को एसोसिएट और प्रोफेसर स्तर पर लागू न करके सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर ही लागू कर रहे हैं इसका परिणाम यह हुआ है कि BHU nothing else will go on record. हैदराबाद Ali Ansari says that will go on record. Nothing else will go on record. आज भी कोई एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ओबीसी वर्ग से नहीं है एक भी प्रोफेसर नहीं है यह एक संस्थागत भेदभाव और एक सोची समझी चाल है यह इस देश के लिए ओबीसी समुदाय को उच्च शिक्षा में आने से वंचित किया जा सके उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को टीचिंग पोस्ट के तीनों स्तर पर आरक्षण का प्रावधान है किंतु गलत तरीके से एंट्री लेवल की दलील देकर इसे केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पर लागू किया जा रहा है महोदय मामला यहीं तक
मामला यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों से ओबीसी को वंचित रखने के लिए नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड एक नया जुमला निकला है, नॉट फाउंड सुटेबल नाम का नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। अधिकतर ओबीसी सीटों पर उन्हें अयोग्य ठहराकर उनकी सीटों को सामान्य कोटे में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। देश के प्रमुख संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने वाले ये ओबीसी विद्यार्थी जब अपने ही संस्थानों में आवेदन करते हैं तो उन्हें भी अयोग्य करार दिया जा रहा है। संस्थागत भेदभाव का इससे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। महोदय, आज जो तमाम यूनिवर्सिटीज में अनरेस्ट है उसका एक बड़ा कारण यह भी है, प्रत्येक अकादमिक वर्ष में यूजीसी के द्वारा आरजीएनएफ, मौलाना आजाद जैसे दर्जनों फेलोशिप उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जिसमें नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी भी शामिल है। पिछले 2 वर्षों से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पूरे देश भर के मात्र 300 विद्यार्थियों को यह फेलोशिप दिया जा रहा है। महोदय, यह कितनी शर्मनाक बात है कि ओबीसी के सिर्फ 300 विद्यार्थियों को देश भर में ओबीसी का फेलोशिप दिया जा रहा है, जो कि ओबीसी की जनसंख्या। Time over. Dr. T. Subbarama Reddy. All the names who associate may be added, including Sharad Yadav ji. That is already taken. Why do you try to create? Why are you doing this? I can go back. You are ready for 2 minutes. I already allowed you. No discussion. You get you. Vijay Mallya. Why are you? Vijay Mallya Modi ko. Vijay Mallya Modi ko. Vijay Mallya Modi ko. Don't do this. Why are you doing this? Vijay Mallya Modi ko. Vijay Mallya Modi ko. Dr. T. Subbarama Reddy, you can say. Subbarama Reddy, yes, speak loud. Nothing else will go on record. Dr. Keshav Rao, KC Tyagi, Sri KC Tyagi, speak loud. Yes, you are 0 over. सर व्यवस्था नहीं है। That is nothing but indiscipline. He raised a point of order. I gave the ruling. That is the end of the matter. You say. कैसे त्यागी? सर, इंडियन एयरफोर्स के तिवारी जी, ये तिवारी जी भी मेरे साथ हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास इतने वायुयान नहीं है कि पाकिस्तान से मुकाबला कर सके। इस समय आवश्यकता है लगभग 65 विमानों की, और जो हमारी क्षमता है वो सिर्फ 33 की है। जो वायुसेना के जो हेड हैं उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट विमान नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान और चीन के बीच में लगभग 3300 किलोमीटर की एक सड़क बना करके उस क्षेत्र में अशांति पैदा करने का भी प्रयास है। मैं रक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान और चीन से
लड़ने के लिए आपके पास वायुसेना की शक्ति काफी है? यदि हाँ तो वो जवाब देने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। Now, Srimati Renuka Chaudhary. Renuka Chaudhary. You want your share over? You can speak loud. Speak loud. I can hear. I can hear. It will be on record. I can hear. Sir, there is illegal mining that is happening with a Dubai company which has come to India and the export of thorium from the Srikakulam beach. Thorium also contains monazite. It's a prescribed substance under the Nuclear Act of the Parliament of India. Sir, not only that, the district collectors and the environmental people have not given them the clearance. The Director of Mines and Geology and the Member Secretary AP Pollution Control have also given various complaints. Despite that, Vatsala Valasa village, there is an illegal dispute. The matter is sub judice, and still this Dubai-based company, which has superficially changed its name, continues to mine valuable minerals such as garnite, ilmenite, sillimanite, rutile and zircon, which is national wealth. This company has transgressed all the environmental laws and regulations, and they persist in building highways, roads over private property without any regard for the nation's law and for the nation's security. Sir, it is imperative that the union government takes cognizance of this and ensures that this company, which is a Dubai-based company called Trimex Industries Limited, should be punished. They have to give adequate compensation to the violations that they have done, and the Environmental Act has to be imposed on them most stringently to ensure the safety. It is a national security issue, sir, for a foreign company to come into our country and to violate the laws and the norms which have been laid down, as well as the grievances of the local people in Valasala Vatsa area of Srikakulam district. This must be taken up with urgent importance and as a national priority issue. Sir, despite all the failings of any public hearing where the citizens have objected to Trimex coming into the area, the government has also reviewed, the industry has to review the earlier orders issued, GOs have been issued, and this is tantamount to attracting contempt with particular reference to the land in the sea border of the Vatsala Valasa village, as the legal dispute is still subsisting in respect of the lands covered by the above GO. In view of this, sir, I demand that the government of India... Time is over. Now, Sri Sharad Yadav ji. Please show respect to the senior most member, at least. Please show respect to the senior most member, at least. एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूँ। आज देश भर में 11 दिन से ये सराफा के लोगों का पूरे देश में हड़ताल है। 35 लाख लोग इस धंधे में काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हर बार, चाहे वो मुरारजी की सरकार हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, चाहे वो आप हो, लगातार एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान दस्तकारों का देश है। यहाँ दस्तकारी के चलते हिंदुस्तान गुलाम हुआ, और आज भी दस्तकारी के मामले में जो सोने और चांदी के कारीगर हैं, उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, और इससे सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं। आपने जो सेस लगाया 1%, वो बहुत ही निंदनीय है, और सबसे ज़्यादा उसमें गरीब लोग,
जो लोग गांव में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, उन सारे लोगों को, अरे तिवारी जी, सारे देश के गांव में जो लोग रहते हैं वो छोटे छोटे लोग हैं, जो बड़े शराफा के लोग वो नहीं है। ये सोना का नाम सुन करके हम लोग सोचते बड़े मालदार लोग हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं जो मजदूरी में लगे हुए हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस मामले में उनको बुला करके बात करें और रास्ता निकालने का काम करें। ये मैं आपके माध्यम से Okay, all the names who associate may be added. All the names. Sugandhar Roy, Taban Sen, Ali Ansari, all the names, yes, Turkey, all the names may be added. Now Sri Vivek Gupta, speak loud, I can hear. Yes, sir. Speak loud, I can hear. Sir, sir, through you, I would like to report, sir, that between yesterday and day before yesterday, the Farakka dam has completely stopped working. Sir, 2100 megawatts of power is no longer available to the region of Bengal and to the neighboring states of Jharkhand and Bihar. Sir, apart from electricity, even water is not available. Clean drinking water that was available in the region is also not available. Sir, when inquiries were made, we were told that this is due to lack of water at the Farakka dam. Sir, I don't know which lack of water, and through you, I would like to urge the central government to take immediate and drastic measures so as to restore water to the Farakka dam and the Farakka project, so that the electricity can be start to be generated and water and electricity restored. Sir, here I would like to mention, many years ago, the Delhi had elections, and because of lack of onion, the sitting government lost the election. Sir, I am just wondering that the timing of water not available and the elections in Bengal, if there is a connection. I hope not, sir. I hope that the lakhs and crores of people who are suffering daily are given immediate relief. Sir, the officials on record, without going on record, have said till 21st of March, there is no condition under which water would be made available. Sir, in 5 days, in 10 days, the amount of damage that will be done to the people because of lack of electricity and lack of water will be tremendous. Sir, through you, I would urge the minister to give some reply today itself on whatever steps he plans to take this emergency. Sir, otherwise this will become a national calamity and a national crisis. Thank you, sir. Yes, Taban and Sugandhar Roy. River. So I think Honorable Minister is here for shipping. He can throw some light and take some action. It is because of the absence of water, the electricity production got completely collapsed. So this is a very serious issue and government must immediately respond. Yes, Sri Naresh Agarwal. Is here. Okay. Please let him respond. Do something to develop the water level. Okay. Sri Naresh Agarwal. Naresh Agarwal, would you like to? हाँ, बोलिए सभापति पहले आवाज से बोलिए तो ऑर्डर में ले आइए। I can hear, it will be recorded. माननीय सभापति मेरे को सुन सकते हैं, रिकॉर्ड में आएगा। बोलिए। ये जितनी एयरलाइंस हैं, ये जब चाहती मनमाना किराया बढ़ा लेती हैं। शिवन, इससे पहले भी बात उठी। अभी I fully support your subject. बोलिए। अभी हरियाणा में जाटों का आंदोलन हुआ, चंडीगढ़ का रास्ता बंद हो गया। चंडीगढ़ से दिल्ली का फेयर 90,000 रुपए कर दिया गया। श्रीमन, गर्मी आ रही है, देहरादून लोग जाना शुरू करेंगे, देहरादून का किराया 30,000 रुपए कर दिया। जब चाहे एयरलाइन जितना किराया बढ़ा ले, ये जब देखते हैं कि मौसम आया उस हिसाब से किराया बढ़ा देते हैं। हमारा कहना है कि सरकार को कहीं इस पर रोक लगाना चाहिए। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ये तय करे कि किराया कितना होगा, अन्यथा तो खुली लूट है श्रीमन, और जनता को लूट देने के लिए ये सरकार एयरलाइंस को संरक्षण दे रही है। तो मेरी सरकार से मांग है कि किराए के भाड़े के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जो किराया तय करे और सालों पर वही एयरलाइन का किराया होना चाहिए, अन्यथा ये एयरलाइन जनता के साथ विश्वासघात कर रही और ये सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। Okay, Naresh ji, I also agree with you. There should be some regulatory mechanism
you may to regulate the prices. Yes. I would suggest government should examine it. That proposal should be examined by the government for a regulatory mechanism. Shri Javed Ali Khan. माननीय उपसभापति जी, मैं सदन का ध्यान लाउडर बोलो। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा यूजीसी के नेतृत्व में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स नाम की एक योजना चल रही थी, जिसके तहत पीएचडी और एमफिल करने वाले माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सरकार की तरफ से प्रति माह 25,000 रुपए की फेलोशिप दी जाती है। लेकिन गत नवंबर 2015 से इन अल्पसंख्यक छात्रों के खाते में फेलोशिप का एक भी पैसा नहीं पहुंचा है। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से ये योजना बंद नहीं की गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनके पास उनके खाते में फेलोशिप की अदायगी नहीं हो पा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ संसद के राज्यसभा के अंदर माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर मौजूद हैं। उनका बयान आया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट बढ़ा करके 87 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है, लेकिन मौके पर देखने में पता चलता है कि अल्पसंख्यक छात्रों को फेलोशिप नहीं मिल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उनकी फेलोशिप तत्काल जारी की जाए, और ये क्यों जारी नहीं की गई है और क्यों रोकी गई है, इस संबंध में मंत्री अपना स्पष्टीकरण दें। ओके, धन्यवाद। यस, रामगोपाल यादव जी, अली अनूर, ऑल नेम्स एसोसिएटेड, नरेश अग्रवाल, सब टू बी ज्वाइंड। House is adjourned for 12:00 hours. 12:00 hours.